وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ایجنڈے کے نکات پر غور۔ وزیر اعظم کا انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم، مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کو نشان عبرت بنائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں جائزہ اجلاس، انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات اور قانون سازی میں پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کا عمل مزید مؤثر بنانے کی ہدایت، استغاثہ کا عمل مزید مؤثر، انسانی اسمگلرز کی جائیدادوں اور اثاثوں کی ضبطگی کے لیے قانونی کارروائی کی جائے۔ محمد شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری سے امریکہ کے سبکدوش ہونے والے سفیر ڈونلڈ بلوم کی الوداعی ملاقات، پاکستان امریکہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی جعلی حکومت ہے، پشاور میں بلدیاتی نمائندوں پر تشدد صوبائی حکومت کے غیر جمہوری رویے کا ثبوت ہے۔ آئینی ترمیم کے وقت پی ٹی آئی مذاکرات کا حصہ نہیں بنی، اس جماعت کی غیر پارلیمانی روش کی ایک تاریخ ہے۔ پرامن واقعات امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی مذموم سازش، ملک دشمن عناصر ملوث ہیں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں نیوز کانفرنس۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے زرعی شعبہ استحکام کی جانب گامزن، پاکستانی تل کے بیجوں کی عالمی سطح پر مؤثر تشہیر کی بدولت ان کی برآمدات میں 366% اضافہ، پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا برآمد کنندہ بن گیا۔ تل کے بیجوں کی سالانہ برآمدات $1 ارب سے تجاوز کر گئی، پیداوار 455% اضافے کے ساتھ سالانہ 11,19,000 ٹن تک پہنچ گئی۔ تلوں کی پروسیسنگ ٹیکنالوجیز میں بہتری سے مصنوعات کی معیاری پیداوار میں مزید اضافہ متوقع۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں ملیر ایکسپریس وے کی پیش رفت سے متعلق کراچی میں اجلاس، شاہ فیصل انٹرسیکشن تا ایئرپورٹ روڈ کو بہتر کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ کی متعلقہ حکام کو ایکسپریس وے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کار پیٹرولنگ تعینات کرنے کی ہدایت، ملیر ایکسپریس وے کے قائد آباد سیکشن کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کے علاوہ ایکسپریس وے کے 1 ایمبولینس اور فائر بریگیڈ بھی ہنگامی حالت کے لیے موجود رکھی جائیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت۔ جنگ بندی مذاکرات کے باوجود غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری، صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری میں بچوں سمیت مزید 28 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں، قلقلیہ میں فائرنگ سے 1 فلسطینی شہید، کئی زیر حراست۔ عالمی ادارہ خوراک کی غزہ میں امدادی قافلے پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ کی مذمت، وحشیانہ بمباری اور رضاکاروں کو نشانہ بنانے کے بعد غزہ میں زندگیاں بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، سربراہ عالمی ادارہ ٹام فلیچر۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو وزارت عظمیٰ اور لبرل پارٹی کی صدارت سے مستعفی، مارچ تک اسمبلی معطل کر دی گئی، نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کا عمل شروع، کئی ماہ کی سیاسی ہلچل اور قیاس آرائیوں کے بعد جسٹن ٹروڈو کا استعفیٰ سامنے آیا۔ چین کے علاقے تبت میں 6.9 شدت کا زلزلہ، 53 افراد ہلاک، 62 زخمی، زلزلے سے متعدد عمارتیں زمین بوس، ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، زلزلے کے جھٹکے نیپال، بھارت اور بھوٹان میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز نیپال کے ساتھ واقع شیگازی شہر کی کاؤنٹی ڈینگری تھا، گہرائی زیر زمین 10 کلومیٹر ریکارڈ، چینی زلزلہ پیما مرکز۔ امریکہ میں افغان طالبان کی مالی امداد کے حوالے سے تشویش، رکن امریکی کانگریس ٹم برشٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو طالبان کی مالی امداد روکنے کے حوالے سے خط لکھ دیا، طالبان کی مالی معاونت دہشت گردوں کی مالی معاونت کے مترادف، ٹرمپ طالبان کو دی جانے والی امریکی امداد کو روکے، رکن کانگریس۔ مودی کے جنگی جنون اور انتہا پسند سوچ کے باعث بھارتی فوج کے اہلکار خودکشیاں کرنے پر مجبور، ساوجیا میں ایک اور اہلکار اپنی زندگی کا خاتمہ کر بیٹھا۔ گزشتہ ماہ شوپیاں میں بھی جوان نے اپنی ہی سروس رائفل سے خودکشی کر لی تھی۔ انڈین فوج میں 2024 میں خودکشیوں کے 787 واقعات رپورٹ ہوئے۔
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में शदीद ठंड। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। दरिया, आबशारें और झीलें जम गईं। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस शहरी घरों में महसूर। बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने 18 साल बाद अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने तलाई तमगा अपने नाम किया। फाइनल में सुहेल अदनान ने मिस्र के मुइज़ तामिर अल मुगाजी को शिकस्त दी। इससे कबल पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने 2007 में ये एजाज़ अपने नाम किया था। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सुहेल अदनान को मुबारकबाद। पाकिस्तान में स्क्वाश के फरोग के हवाले से बड़ी खुशखबरी। एक तवील मुद्दत के बाद वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। स्क्वाश अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबलों का मैदान 2025 में पाकिस्तान में सजेगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस खेलों के फरोग के लिए अपना किरदार निभाती रहेगी। कोर कमांडर और सऊदी अरब के सहरा में डाकार मोटर रैली दूसरा मरहला मकामी रेसर यजीद अलराजी ने जीत लिया। अलराजी ने 967 किलोमीटर के फासले में 4 मिनट 16 सेकंड्स के फर्क से पहली पोजीशन हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका के हैंक को मजमूई बर्तरी हासिल। बाइक पर ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स की लगातार तीसरी कामयाबी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। मैं हूं शाहिद नसीम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि FIA की जानिब से इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों का आगाज खुशाइंद है। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सहूलतकारों और इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों को निशान इबरत बनाने के लिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि इस मकरूह धंधे में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ इस्तगासा का अमल मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि दफ्तर खारजा बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुतल्लिका ममालिक से राब्ता करे और उनकी पाकिस्तान हवालगी के हवाले से जल्द अज जल्द इक़दाम उठाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत इत्तलात व नशरियात को हिदायत देते हुए कहा कि वज़ारत दाखिला के ताउन से अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने की आगाही मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात, सहूलतकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कानून साजी पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम और मुतल्लिका इदारों के आला अफसरान शरीक थे। सदर आसिफ अली जरदारी से सुबुकदोश होने वाले अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लोम ने मुलाकात की। अमरीकी सफ़ीर की सदर ममलकत से होने वाली अलविदाई मुलाकात ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की जाली हुकूमत है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद सूबाई हुकूमत के गैर जमहूरी रवैये का सबूत है। मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आइनी तरमीम के वक्त PTI मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनी। इस जमात की गैर पार्लिमानी रविश की एक तारीख है
انہوں نے کہا کہ کرم واقعات امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی مذموم سازش ہے۔ ہماری سوسائٹی میں فرقہ وارانہ عناصر موجود ہیں، اشتعال میں نہیں آنا، تحمل اور برداشت سے کام لینا ہے۔ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ آئین بھی ہمارا ہے، یہ نظام بھی ہمارا ہے۔ پرامن طریقے سے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے اور فتوحات حاصل کرنی ہے۔ SIFC کے تعاون سے پاکستانی تل کے بیجوں کی عالمی سطح پر تشہیر کے لیے وزارت تجارت کا فعال کردار ہے۔ تل کی برآمدات میں 366% اضافے سے بیجوں کی سالانہ برآمدات $1 ارب سے تجاوز کر گئی ہیں اور پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا برآمد کنندہ بن گیا ہے۔ تل کے بیجوں کی پیداوار 455% اضافے کے ساتھ سالانہ 1.119 ملین ٹن تک پہنچ چکی ہے۔ وفاقی وزیر تحفظ خوراک رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ تلوں کی پیداوار نے پاکستان کی معیشت کو نئی رفتار دی ہے۔ تلوں کی پروسیسنگ ٹیکنالوجیز میں بہتری سے مصنوعات کی معیاری پیداوار میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ SIFC کی معاونت سے حکومت تلوں کی پیداوار اور مارکیٹ تک رسائی میں مزید اضافے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں ملیر ایکسپریس وے کی پیش رفت سے متعلق اجلاس کراچی میں ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ملیر ایکسپریس وے کے قائد آباد سیکشن کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسپریس وے کے لیے ایک ایمبولینس اور فائر بریگیڈ بھی ہنگامی حالت کے لیے موجود رکھی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ایکسپریس وے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کار پیٹرولنگ تعینات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں شاہ فیصل انٹرسیکشن تا ایئرپورٹ روڈ کو بہتر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملیر ایکسپریس وے کا پہلا سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے۔ ناظرین، حکومت پاکستان دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے IT اور ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دینے پر عمل پیرا ہے، جبکہ موجودہ حکومت کی جانب سے گزشتہ سال دسمبر میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کے نام سے بل بھی پیش کیا گیا۔ ڈیجیٹل ایکٹ کے مطابق ہر شہری کے لیے محفوظ ڈیجیٹل شناخت کا قیام اور آن لائن سروسز کی فراہمی کو مستحکم بنایا جائے گا۔ معیشت کی ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو نئے مواقع فراہم ہوں گے۔ ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے مطابق ہر شہری کا ڈیٹا محفوظ طریقے سے مرکزی پلیٹ فارم پر یکجا کیا جائے گا تاکہ شہریوں کو بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ پاکستان کے ڈیجیٹل ویژن کا مقصد حکومتی نظام میں شفافیت، احتساب اور کارکردگی میں اضافہ ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان سے آن لائن سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ ایک محفوظ ڈیجیٹل معاشرہ تشکیل پا سکے۔ مودی کے جنگی جنون اور انتہا پسندانہ سوچ کے باعث بھارتی فوج کے اہلکار خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج میں گزشتہ برس خودکشیوں کی ایک خوفناک لہر دیکھی گئی، جس میں 787 واقعات رپورٹ ہوئے۔ حال ہی میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ کے علاقے ساوجیا میں ایک بھارتی فوجی اہلکار نے خودکشی کر لی۔ فوجی اہلکار کی شناخت کرشنا کے نام سے ہوئی۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ گزشتہ ماہ پیش آیا، جس میں ضلع شوپیاں کے ایک CRPF 178 بٹالین کے اہلکار نے اپنی ہی سروس رائفل سے خودکشی کر لی تھی۔ سال 2023 میں بھارت میں 100 فوجیوں اور فضائیہ و بحریہ کے 20 اہلکاروں نے خودکشیاں کی۔ کنفیڈریشن آف ایکس پیراملٹری فورسز ویلفیئر ایسوسی ایشنز کی مرتب کردہ رپورٹ کے مطابق 2014 اور 23 کے درمیان تقریباً 430 اہلکاروں نے خودکشی کی۔ 2023 میں کل 57 جبکہ جون 2024 تک 24 اہلکاروں نے خودکشی کی۔ افغان طالبان کی مالی امداد سے متعلق امریکہ میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ رکن امریکی کانگریس ٹم برشٹ نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو طالبان کی مالی امداد روکنے کے حوالے سے خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ غیر ملکی امداد کے نام پر بالواسطہ طالبان کو مالی معاونت فراہم کر رہی تھی۔ سیکریٹری اینٹونی بلنکن نے بھی اعتراف کیا ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں نے طالبان کو تقریباً $10 ملین کی رقم غیر ملکی امداد ٹیکس کی مد میں ادا کی۔ انہوں نے ٹیکس دہندگان کے پیسوں کے استعمال پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے ساتھ تشبیہ دی۔ رکن کانگریس مین ٹم برشٹ نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کو دی جانے والی امریکی غیر ملکی امداد کو روک دیں۔ ٹم برشٹ نے ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ غیر ملکی امداد کی مد میں ایسی فنڈنگ کو ختم کیا جائے۔ خط سامنے آنے کے بعد ایلن مسک نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا ہم واقعی امریکی ٹیکس دہندگان کی رقم طالبان کو بھیج رہے ہیں؟
अफगान तालिबान दुनिया भर में इन पर लगी दहशतगर्दी की छाप को खत्म करने में नाकाम हो चुके हैं। खत इस बात का भी सबूत है कि अफगान तालिबान खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देने में मसरूफ हैं। खबर शामिल करते हैं चीन से। चीन के इलाके तिब्बत में 6.9 शिद्दत के जल्जले में 53 अफराद हलाक और 62 जख्मी हो गए। चीनी जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज नेपाल के साथ वाक़ शिगाजी शहर की काउंटी डेंगरी था। गहराई ज़ेर ज़मीन 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। चीनी हुक्काम के मुताबिक शदीद जलजले से मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं और बहुत लोग मलबे तले दबे हैं। फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। ज़लज़ले के झटके नेपाल, भारत और भूटान में महसूस किए गए। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में इमारतें लरस गईं। ज़लज़ले के झटके भारतीय रियासत बिहार में भी महसूस किए गए, ताहम वहाँ शिद्दत कम रही। कई इलाकों में ज़लज़ले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। चीनी मीडिया का कहना है कि इस खित्ते में 5 साल के दौरान आने वाला ये सबसे खतरनाक ज़लज़ला है। और अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहां जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी है। गजा पर इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी में बच्चों समेत कई अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक वस्ती गजा के इलाके अलबोरिज पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली तैयारों की शेलिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद और 13 जख्मी हो गए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के बाद मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। कलकलिया में काबिज़ फ़ौज की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद हो गया। घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। आलमी इदारा खुराक ने गजा में इमदादी काफ़िले पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग की मजम्मत करते हुए कहा है कि आलमी इदारे के रज़ाकारों को निशाना बनाने के बाद जंगज़दा इलाके में इमदादी काम मुश्किल हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से गजा में इमदादी कामों के सरबरा टॉम फ्लेचर ने कहा कि वहशियाना बमबारी और रज़ाकारों को निशाना बनाने के बाद गजा में ज़िंदगियाँ बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। दोहा में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी ग्रुप इसराइली यरगमालियों को रिहा करने पर रज़ामंद हो गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताएंगे कि अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियों में नरमी करते हुए नई इंतजामिया को इंसानी बुनियाद पर इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। अमरीकी महकमा खजाना ने 6 माह तक जारी रहने वाला एक आम लाइसेंस जारी किया है, जिसके तहत शामी हुकूमत के साथ कुछ लेन देन की इजाज़त दी गई। नायब वज़ीर ख़जाना वालिया रीमो ने कहा कि शाम में इंसानी इमदाद और ज़िम्मेदार हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। शाम के नए वज़ीर तिजारत ने कहा था कि दमिश्क पर सख्त अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईंधन, गंदम या दीगर अहम अशिया की दरामद के मुआहदे करने से कासिर हैं। कुछ मजीद कौमी खबरें यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि रुकन कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद ने कहा है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम सूबे भर में इनकलाब का पेश खैमा साबित होगा। उन्होंने कहा कि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है, हम इसी ईमानी जज्बे के जरिए इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे। अटक में सुथरा पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इस प्रोग्राम का मकसद शहरों और देहातों में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुख्तसर मुद्दत में सूबे में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा दिया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमेशा की तरह इस मरतबा भी रिकॉर्ड तरक्याती काम करेगी और आवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करने की भरपूर कोशिश करेगी। कमिश्नर रावलपिंडी और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन में डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स इस अहम मुहिम की निगरानी करेंगे। आवाम अपनी शिकायत 1139 पर दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। मालदीव में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर वाइस एडमिरल रिटायर्ड फैसल रसूल लोधी ने सदर डॉक्टर मोहम्मद मोईस से मुलाकात की। मालदीव के सदर ने दोनों ममालिक में गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने तिजारत, सेहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, सियाहत और दिफा में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मालदीव के सदर और हाई कमिश्नर ने दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने मालदीव के सदर को अपनी तकरीर की असनाद पेश की। डॉक्टर मोईस ने हाई कमिश्नर को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हाई कमिश्नर को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के सकाफती बैंड के हमरा सदर दफ्तर ले जाया गया।
بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر محفوظ فیصلہ آج سنایا نہ جا سکا۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 درخواست پر ایک ساتھ ہی فیصلہ ہوگا۔ وکیل صفائی نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو حاضری سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے عملے کو اگلی تاریخ سے قبل بانی پی ٹی آئی کی حاضری یقینی بنانے کے لیے جیل حکام کو پابند کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے سماعت 28 جنوری تک ملتوی کر دی۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ایک ماہ میں نادہندگان سے 90 کروڑ 50 لاکھ کی ریکارڈ وصولی کی ہے۔ ترجمان پیسکو کے مطابق یہ وصولیاں گزشتہ ماہ کی گئیں اور اوسطاً ایک روز میں 30 ملین روپے سے زائد کی وصولیوں کو یقینی بنایا گیا۔ یہ وصولیاں پشاور، خیبر، سوات، مردان، ایبٹ آباد، سوابی، ڈی آئی خان، بنو اور مانسیرہ میں کی گئیں۔ پیسکو چیف اختر حمید خان نے ٹیموں کو نادہندگان سے وصولیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے۔ آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلیں وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارش برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ ہم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہو سال نہ ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ خبر نامے میں خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کی تمام جامعات اور کالجز میں رینکنگ نظام متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ تعلیم مینا خان افریدی کی زیر صدارت رینکنگ کے بارے میں اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر کو یونیورسٹیز اور کالجز میں رینکنگ سسٹم پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مینا خان افریدی کا کہنا تھا کہ رینکنگ نظام کا بنیادی مقصد طلباء کو معیاری تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا ہے۔ اس نظام سے تعلیم میں بہتری آئے گی۔ صوبائی وزیر نے جامعات کے 3 سال کے سابقہ ڈیٹا اکٹھا کر کے کارکردگی کی بنیاد پر رینکنگ کرنے کی ہدایت کی۔ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے دور افتادہ علاقوں میں خواتین اب بھی اس نعمت سے محروم ہے۔ پشاور سے نمرہ اعجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ رپورٹس کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع میں تقریباً 73% لڑکیاں اسکول جانے سے قاصر ہیں۔ اس کے برعکس سوات کے پرائمری اسکولوں میں حوصلہ افزا صنفی توازن دیکھا جا رہا ہے، جہاں 51% لڑکے اور 49% لڑکیاں زیر تعلیم ہیں۔ اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی کمی، والدین کی مالی مشکلات اور سیکیورٹی کے خدشات جیسے عوامل بچیوں کی تعلیم کے لیے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بچیوں نے پڑھ کے کون سی نوکری کرنی ہے۔ جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں
वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस का होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे बच्चियाँ दूर दराज में नहीं जा सकती। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है उनको स्कॉलरशिप्स का होता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे देहाती इलाकों में एज़ कम्पेयर टू शहरी इलाकों, वहाँ पर ख़वातीन की तालीम का वो अभी भी वो फ़रोग नहीं है। हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो अब नई चीज़ जो हम ज़्यादा देख रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज भी है। फ्लड्स आ गए, सैलाब आ गए, तूफ़ान आ गया, वो तो उनके रास्ते बंद हो जाते हैं या उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत की जानिब से स्कूलों की तादाद बढ़ाने और माली वज़ाइफ की फराहमी जैसे इक़दामात किए जा रहे हैं, मगर इनका असर अब भी महदूद है। ट्रांसपोर्ट का तो स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए काफ़ी इशू है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, जो फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ पर। वालिदैन की ख्वाहिश होती है, चाहे उनकी लड़कियाँ हों या बेटे हों, दोनों को वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। औलाद की पहली दरजगाह माँ की गोद होती है, इसीलिए औरत का तालीम याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है। निम्रा एजाज, PTV न्यूज़, पेशावर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत तालीम के शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इलाके के देहातों में बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। तफसीलात के लिए आपको दिखाते हैं गिलगित से शाहीन अख्तर की ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत तालीम के शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सूबा भर के सैकड़ों देहातों में बच्चियों को जेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए दरकार सहूलियात की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जा रही है, ताकि तालिबात का तालीमी सफ़र किसी रुकावट के बगैर जारी रह सके। पिछले एक साल के दौरान जो है वो हमने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स इसके अंदर ली हैं ताकि तालीमी निज़ाम को गिलगित बल्तिस्तान में बेहतर किया जा सके और एक्सेस टू एजुकेशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बच्चों का, हमारे बच्चियों का, उसको पूरा करने की गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने हद्दुल इम्कान कोशिश की है। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों की बच्चियां तवील मुसाफत और मौसमी हालात के बावजूद हुसूल इल्म को अवलियत दे रही हैं। औरत को हमेशा तालीम ज़रूरी है, वो अपने माशरे में अपने घर के लिए सब कुछ इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। औरत ही एक बेहतर माँ बन सकती है। औरत को तालीम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो मर्द के शाना बशाना खड़ी हो सके। गिलगित बल्तिस्तान में बच्चियों का तालीम की तरफ रुझान हौसला अफजा है। तालिबात को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तालीम के हुसूल की राह में हाई रुकावटें दूर करके मुआशरे की तरक्की में इनकी सलाहियतों से इस्तिफादा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़रूरी है कि जहाँ पे लड़कों को तालीम दे रहे हैं वहीं पे लड़कियों की तालीम पर भी जोर दिया जाए, ताकि एक बेहतरीन मुआशरे को परवान चढ़ा सके। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। गिलगित बल्तिस्तान के बाद आपको लिए चलेंगे वस्ती पंजाब के जिला उकाड़ा के दूर उफ्तादा इलाके हवेली लखा की जानिब, जहां रेस्क्यू 1122 के स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी फताउल्लाह नवाज। जिला उकाड़ा के दूर अफ्तादा और नहायत पसमानदा इलाके हवेली लखा में पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक बर वक्त मुतासरीन को रेस्क्यू 1122 की सहूलत से मुस्तफीद करने के लिए टाउन स्टेशन का क़याम अमल में लाया जा चुका है। इफ्तिताई तकरीब के मौका पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हाफिज मोहम्मद तैयब और ज़िले हेड रेस्क्यू 1122 इंजीनियर एहतशाम समेत इलाका भर से माहिदीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। इस मौका पे मुकर्ररीन ने हाजरीन से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अवामी उमंगों की तर्जमानी करने और बिला तफरीक अवाम को सहूलियात मुहैया करने के लिए खालिस्तन अवामी फलाह और तरक्की के मनसूबाजात पे दिन रात कोशां हैं। इस स्टेशन के फाल होने से न सिर्फ अंदरून हवेली लखा और इसके नवाही देहात और कस्बाजात में ट्रैफिक हादसात और मरीजों को बर वक्त दीगर जगहों के मराकज़ सेहत में मुंतकिल करने समेत रेस्क्यू 1122 के जुमरे में आने वाली दीगर जिम्मेदारियों से हर खास आम मुस्तफीद हो सकेगा, बल्कि हवेली लखा दरियाए सतलुज के करीब वाक़ होने के सबब फ्लड सीजन में सैलाबी सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए इस इलाके को फौरन एमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी मैसर हो सकेगी। चौधरी फतेहुल्लाह नवाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला उकाड़ा। नाज़रीन, सक्खर की होलसेल मछली मंडी पाकिस्तान की बड़ी मीठे पानी की मंडियों में शुमार होती है, जहां से रोजाना मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी मिकदार में मछली भिजवाई जाती है। हालिया दिनों में मछली की तलब में इजाफे के बायस मंडी में खासी गहमा गर्मी देखी जा रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सक्खर से मलिक इमरान शाहिद।
होलसेल मछली मंडी में रोजाना दरिया सिंध और दीगर नहरों के अलावा कंदकोट, कश्मोर, शिकारपुर, लाड़काना, खैरपुर, घोटकी, नुशैरा फरोज के मुख्तलिफ फार्मों से कई मन मछलियां लाई जाती हैं। यहाँ 5 इकसाम की डंबरा, गुलफाम, सिल्वर, मल्ली, खग्गा, बाम, शाकुर, मोराखी, थैली, पापलेट, सोल और ग्रास समेत मुख्तलिफ इकसाम की मछलियां दस्तयाब होती हैं, जो मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों और अफगानिस्तान तक भिजवाई जाती हैं। अफगानिस्तान में मीठे पानी की मछली की खासी तलब के बायस वहाँ के ताजिर भी यहाँ खरीदारी करने आते हैं। सारा मछली अफगानिस्तान में जाता है, सिल्वर, गुलफाम, मल्ली, सिंगाड़ा, हर चीज जाता है। उधर ये कार्टून में डालता हूँ ना, 30 गुल कार्टून में जाता है, बर्फ डालता है, फिर गाड़ी में जाता है, फिर पहुंच जाता है, 2 दिन का अंदर। मंडी के ताजिरों के मुताबिक साल भर खरीदारी का सिलसिला जारी रहता है। ताहम अक्टूबर से फरवरी तक का अरसा कारोबारी सीजन का उरूज का जमाना होता है, जब रोजाना तकरीबन 300 मैट्रिक टन मछली की फरोख्त होती है। मछलियों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भिजवाने के लिए खुसूसी थर्मोकोल के बॉक्स तैयार किए जाते हैं, जिनमें मछलियाँ 2 से 5 रोज तक महफूज रहती हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सखर। हुकूमत इस्लामाबाद में सेरीना चौक इंटरचेंज और F8 इंटरचेंज मंसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए कोशिश है। तफसील जानिए फहद अजीज से। इस्लामाबाद में सरीना चौक इंटरचेंज पर काम तेजी से जारी है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए सरीना चौक इंटरचेंज का संगे बुनियाद रखा था। मंसूबे को 100 दिन में मुकम्मल करने का हदफ दिया गया था, जिसे आंदा चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। 4 अरब रुपए की लागत के मंसूबे की तकमील से शायरा दस्तूर से अपारा जाने वाली ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो जाएगी। 2 अंडर पासेस श्रीनगर हाईवे पर जेर तामीर हैं, जिनका स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया गया है। शहरियों का कहना है कि सूबे से सरीना चौक और दीगर इलाकों की ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। एक गाड़ी को 3 दफा सिग्नल गुजारना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, तो ये फ्लाई ओवर से तो बहुत मसले हल हो जाते हैं। सामने आपको ट्रैफिक नजर आ रहा है, बहुत ट्रैफिक जाम है। जब ये फ्लाई ओवर बन जाएगा तो फिर ये ट्रैफिक की रवानी में आसानी हो जाएगी। ये हम हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार है कि इस तरह मज़ीद इस तरह मंसूबे बनाए ताकि मुल्क तरक्की करे, आवाम को सहूलत हो। मंसूबे के फ्लाई ओवर पर भी काम तेजी से जारी है। F8 इंटरचेंज पर जेर तामीर फ्लाई ओवर ब्लू एरिया से F10 जाने वाली ट्रैफिक को सहूलत फराहम करेगा। तरक्याती मंसूबों का इंतहाई कम वक्त में मुकम्मल होना शहरियों के लिए बेहद फायदेमंद है। इन मंसूबों से न सिर्फ शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलत मैसर आएंगी, बल्कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चीन की तर्ज पर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी और मिट्टी धूल से निजात का जदीद तरीका लागू करने का फैसला किया है। लाहौर में 1,500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने के अहकाम दे दिए गए हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा है कि ये मकामी तौर पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी है, जिस पर गुज़श्ता 3 हफ्ते से तजर्बात जारी थे। EPA ने तजर्बात को कामयाबी के बाद अब इसे अमली तौर पर लागू करने का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब ने CNW और LDA को फौरी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि पानी को फवारे के अंदाज में इस तरह चलाया जाता है जिससे तामीराती मकाम पर मिट्टी न उड़े और गर्दो गुबार पैदा न हो। 15 जनवरी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब की जाएगी। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि वाटर स्प्रिंकलर्स और इसके तरीक़ाकार से स्मोक के खात्मे के मिशन में मज़ीद तेज़ी और बेहतरी आएगी। माहौलियाती बेहतरी के लिए रवैयों की तब्दीली, हर शहरी का ताउन, जदीद मशीनरी और तरीक़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है। अमरीका ने ग्वांतानामो बे से यमन के 11 कैदियों को रिहा करके ओमान मुंतकिल कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमरीकी इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ग्वांतानामो बे इंसानी हकूक़ पर हमेशा से एक बददुमा दाग रहेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रिहाई पाने वाले अफराद को दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में तकरीबन 20 साल तक बगैर किसी इल्ज़ाम के ज़ेर हिरासत रखा गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 11 की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा कि ग्वांतानामो बे का फ़ौजी हिरासती मरकज़ अमरीका के इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड पर एक वाज़े और बदनुमा दाग है। अमरीकी महकमा दिफा ने एक बयान में कहा कि अमरीकी हुकूमत ओमान और दीगर शराकतदारों की कोशिशों का खैर मकदम करता है। अमरीका ने ग्वांतानामो बे को बंद करने का इंदिया भी दिया है। ग्वांतानामो बे में अब सिर्फ 15 कैदी रह गए हैं। दूसरी जानिब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वज़ारत उस्मा और पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी की जानिब से नए सरबराह के इंतखाब के बाद जस्टिन ट्रूडो ओहदा छोड़ देंगे। अमरीका में बर्फानी तूफान से 6 करोड़ लोगों के मुतासिर होने का खदशा है।
7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अमेरिका में बर्फानी तूफान ब्लेयर से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बर्फानी तूफान से सबसे ज़्यादा रियासत कैंसस मुतासर है। इसके अलावा मिजूरी, केंटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस और न्यू जर्सी के कुछ हिस्सों में भी इमरजेंसी नाफिज की गई है। इन रियासतों में सरकारी दफातर और स्कूल बंद हैं, जबकि बिजली का निज़ाम भी दरहम भरम है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने और मशरकी पंजाब और बालाई सिंध में रात के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पठवार में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील लहम -10, काला -9, जबकि कलात और अस्तोर में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे खेल की खबरों का। 16 कर दें, 16 कर दें, 16